Well, thanks a lot for that. Good afternoon. You continue to be with us here at CNN News 18. I'm Ridhima Bhatnagar. Let's begin with our top focus. There has been a big crackdown on terror by the Assam government on a terror-linked madrasa. Now, the Uttar Pradesh government has also issued instructions to all the district magistrates to conduct a survey of unrecognized madrasas by the 10th of September. The survey team will include the STM, the BSA and district minority officers. MIM Chief Asuddin Owaisi has slammed the BJP government for targeting and harassing the madrasas unnecessarily. Meanwhile, AIUDF chief has launched a fresh salvo at the Assam government and said that he will move Supreme Court over the demolition of these madrasas. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, while reacting to the demolition of these madrasas, has said that his government is not specifically targeting madrasas, but if it finds any wrongdoing action, will definitely be taken. संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये Government of Assam doesn't have any intention to go on demolishing madrasa. Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. Once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. And my colleague Pranshu Mishra had a conversation with Danish Azad, the UP Minority Affairs Minister. Let's listen in. UP government's decision to do a survey of unrecognized madrasas is seeing a lot of political attack also. In fact, Asuddin Owaisi is saying that it is a clear act of vendetta on the part of Yogi government. I am joined in by the Minority Affairs Minister of Uttar Pradesh, Mr. Danish Ansari, to talk more on this issue. Danish ji, आपने ये जो आदेश है इस वक्त की सर्वे करेंगे तमाम DMSPs हर जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, क्या है इस आदेश का मूल तत्व? क्या जरूरत पड़ गई इस तरह का एक निर्णय लेने की उत्तर प्रदेश सरकार को? देखिए, योगी सरकार मुस्लिम नौजवानों के तरक्की के लिए लगातार ग्राउंड लेवल पे ठोस काम कर रही है। मदरसों में हमने NCERT का कोर्स लागू किया, मदरसों को हमने डिजिटलाइज किया, मदरसे के पाठ्यक्रम को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आए, ऐप के माध्यम से मदरसे के पाठ्यक्रम को ले आए। हमने NCC NSS को मदरसे से कनेक्ट किया। हर कदम दर कदम हम अपने मुस्लिम युवाओं के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। उसी दिशा में हमारे पास उत्तर प्रदेश में जो हमारे मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड 16,513 जो मदरसे हैं, उन 16,513 मदरसों के अलावा भी ऐसे कई मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है या किसी अन्य बोर्ड से चल रहे हैं। तो ऐसे मदरसों का भी जानकारी होना गवर्नमेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स निकालती है तो उसके पास एग्जैक्ट आंकड़ा होना चाहिए कि एग्जैक्ट हमारे पास कितने स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में क्या उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल पा रही है, क्या उनको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था मिल पा रही है, क्या वहाँ के फर्नीचर अच्छे हैं, वहाँ पे शिक्षक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पा रहे हैं, टॉयलेट अच्छे हैं। तो ये भी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं छात्रों को मिलनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और सरकार पूरी ईमानदारी से बिना भेदभाव के अपना काम कर रही है। ये तमाम उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है और ये एक सर्वे है ताकि हमें ग्राउंड की एक एग्जैक्ट रिपोर्ट मिल जाए कि हमारे पास इतने बच्चे हैं और कोई भी हम योजना बनाएं, कोई भी पॉलिसी ले आए तो उन योजनाओं का लाभ सीधा उन बच्चों को भी मिले। यानी कि आप ये बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं सर की सरकार का की नियत किसी भी तरीके का
टारगेट करना नहीं है कि मतलब आतंकवाद के नाम पर या किसी अलग तरीके की आपराधिक गतिविधियों के नाम पर, यह सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास है मदरसों के अंदर। निश्चित तौर पे शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। हमारा मुस्लिम जो यूथ है उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मदरसे में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे छात्र पढ़ते हैं। ये हमारे कौम का फ्यूचर डिसाइड करेंगे और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि उनके करियर के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनके बेहतर भविष्य के लिए पूरी ईमानदारी से, गंभीरता से काम कर रही है और मैंने आपको गिनाया तमाम योजनाओं से, तमाम प्रयासों से हम उनको बेहतर कर रहे हैं और हम इसी तरीके से सार्थक मन के साथ सबको लेकर, सबके साथ संवाद करके उन्नति की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। मुझे याद है कि इससे पहले भी जब आपसे बात हुई थी तो सरकार की तरफ से इस तरह का आदेश था भी कि वहाँ की हम के करिकुलम को बेहतर करेंगे, नए इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे और भी वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। सवाल ये कि जो मदरसे मान लीजिए जांच में निकल के आते हैं कि मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उनका क्या होगा? उनके संदर्भ में कोई अभी कार्रवाई निश्चित है कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सर्वे एक पॉजिटिव चीज है। सर्वे में हमको वहां जानकारी मिलेगी कि मान लीजिए किसी मदरसे में बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, इंफ्रा की कमी है, वहां पे कैसे सुविधा मुहैया कराई जाए, कहीं अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुनिश्चित करनी है, वो हम करेंगे। हमारा मकसद ये है कि एक हमारे मुस्लिम यूथ को बेहतर सुविधाएं मिले और इसके लिए ईमानदारी से योगी सरकार काम कर रही है और हर चीज में नकारात्मक भाव ढूंढना विपक्षियों की जो आदत बन गई है। तो ओवैसी साहब को क्यों इसमें कुछ शंका हो रही है, आशंकाएं क्यों उनको हो रही हैं? ओवैसी साहब को इसलिए शंका हो रही है, उनको दिक्कत इसलिए हो रही है कि वो देख रहे हैं कि मुस्लिम आज शिक्षित हो रहा है, मुस्लिम तरक्की पसंद हो रहा है। तो ये जब मुस्लिम शिक्षित हो जाएगा तो उनकी जो उल्टी सीधी बातें हैं उसको सुनना बंद कर देगा, तो उनकी जो राजनीति की दुकान है वो बंद हो जाएगी। इसलिए ओवैसी जी को बुरा लग रहा है और इस तरह के बयान देके समाज में कंफ्यूजन पैदा करना, वो एक अच्छे लीडर हैं। हमको, मेरी आपसे अपील है कि ओवैसी जी को भी हर सार्थक कदम में वो कोशिश ये चल रही है कि जैसे असम को यूपी से लिंक किया, जैसे असम में अभी कुछ हाल फिलहाल मदरसों को ये कहते हुए कि वो इलीगल एक्टिविटीज में, टेररिस्ट उसमें शेल्टर दे रहे थे, तो उनको डिमोलिशन हुआ है मदरसों का असम में, उससे लिंक करके देख रहे हैं। तो आप ये श्योर कर सकते हैं हमारे दर्शकों को कि उस तरीके का कोई प्रयास उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश का एक एक जन, हमारा अल्पसंख्यक समाज और खास तौर पर हमारा मुस्लिम समाज पूरी तरीके से सुरक्षित है और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलजुल कर एक साथ तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी व्यक्ति समाज में ऐसा भ्रम फैला रहा है, आम जनता देख रही है कि किस तरीके से समाज को अगर बांटने की कोशिश कोई नेता कर रहे हैं, तो ये भी समाज देख रहा है और ये आज का समाज है, ये जागरूक समाज है, ये तरक्की पसंद समाज है और आज का मुस्लिम पूरी तरीके से जागरूक है। वो अपना अच्छा और बुरा जानता है और इसीलिए हमारे हर कदम में, हर फैसले में हमारे मुस्लिम भाई भी स्वागत करते हैं और उसका हमारा तमाम सहयोग करते हैं। ओवैसी जी को ये क्यों नहीं दिखता है कि मदरसे में जो शिक्षकों की, अभी कल एक और फैसला आया, म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो सकेंगे, मैटरनिटी लीव भी हमारी जो शिक्षिका है, जो कर्मचारी, उनको मिलेगी। हमारे मदरसों में एनसीईआरटी का कोर्स लागू है, हम मदरसों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। And my colleague Pranshu Mishra, in fact, he is now joining us on the broadcast. Pranshu, there are two aspects to what is playing out as far as this madrasa story is concerned. I want to talk to you specifically about what's happening in Uttar Pradesh. Am I correct to understand that the thinking and rationale of the Uttar Pradesh government is to try and filter those madrasas where the quality of education which is being imparted is either not up to the mark or questionable? Yes, that's right. See, in fact, what is happening is that the entire madrasa policy of Yogi government is actually being looked into or is being tried to define as per the larger political narrative for which BJP is known. And that is about, that there's often this allegation is that minorities are unnecessarily being targeted. Now, for that matter of fact, and what Danish Ansari also told us is that for the past 5 years, in fact, Yogi Adityanath has been chief minister for more than past 5 years. We have never reported of a case that any madrasa was bulldozed down or, any madrasa was actually targeted or harassed. In fact, even when we have reported upon the terrorist cases, we haven't reported about any ATS case
case being, where madrasa has been zeroed down as a center or at the as a center of terrorist activities, as has been the case in Assam. That's the reason, and on the basis of that, UP government is trying to come out and say that the only reason we are trying to do this survey is to actually make madrasa education more accountable, to provide more better infrastructure to the madrasas, and to ensure that the money which goes in for the madrasa in terms of, grants for teachers' salaries or for the infrastructure development or for the scholarship for the poor students, that goes into the right direction. And that's what the UP government is trying to clarify, that no effort should be made to try and equate this policy as an act of vendetta or as a design of vendetta against the madrasas. Rather, it's an act of trying to streamline the madrasa education, and also the law says that if any education institution is operational across any board, across any language, it needs to have certain recognition from the concerned state government. That is what the Yogi government is trying to do. But yes, there is of course an effort on the part of political opponents to try and read this exercise in the eyes of larger narrative which is often built against the BJP, that is of the minorities, targeting the minorities. Okay, Pranshu, thanks a lot for getting us all those details.